धोरण 9 विषय हिंदी गेम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने एक यात्रा यह भी जो 11 पाठ है आपका 11वां, उसके लेखक है रामदरस मिश्रा। तो हम पेज नंबर कहाँ पे आए थे? 46 पर। आज पाठ ख़त्म कर देना है। उसके बाद में रानी जो पाठ है वो पाठ हमको अभी चलाना है और ग्रामर भी बाकी है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब थोड़ी जल्दी करके हमको ख़त्म करना है, तो आप भी घर पे तैयारी करना। तो सुनिए, अब हम कहाँ तक आए थे कि दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक भी लगा दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। એટલે કહે છે મોહન કે મને આ કારણથી બહુ સંતોષ મળ્યો। मैं तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उधारती रही है। એટલે કહે છે કે મેં તો એક વખત જ એને મદદ કરી, પરંતુ એ તો મને વારંવાર જે મુસીબતો આવે છે એમાંથી બચાવી લે છે। मोहन की यह कहानी पर हम छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। એટલે કે છે કે મોહનની આ વાત સાંભળીને ને એમને મોહન ઉપર લાગણી લાગી। એમને મોહન ઉપર એમને ગર્વ થાય છે કે આટલો સમજુ છે માણસ, એને એનામાં માનવતા છે। તે એ લોકોના મનમાં મોહન પ્રત્યે વધારે આત્મસન્માન થયું। गाड़ी का समय हो रहा था। ગાડીનો સમય થઈ ગયો હતો। મોહન हमें लेकर स्टेशन आ गया। मोहन એ લોકોને લઈને સ્ટેશન ગયો। उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा। એ લોકો મોહનને 500 रुपया આપવા માંડ્યા। वह बोला, रह दीजिए बाबूजी। એ ના પાડે છે કે મારે જોઈતા નથી, રહેવા દો। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। કે આ તો તારા મહેનતના પૈસા છે, તું લઈ ले, હું તને કોઈ દાન આપતો નથી। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। એટલે કહે છે કે મેં તો મા બાપનો પ્રેમ શું હોય ને એ તો જોયું જ નથી, પણ તમારી લોકો જોડેથી મને એવું લાગે છે કે મને મારા મા બાપ મળી ગયા હોય। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल नहीं। એટલે કે તમારી જોડે મને જે પ્રેમ મળ્યો છે એની આગળ પૈસાનું તો કોઈ મોલ જ નથી। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। तो कि पैसा तो बीजा लोगों पासेથી પણ હું કમાવી લઉં છું। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। એટલે કે છે કે મારાથી છોકરાનું શોષણ ના કરાય, તારા જે થતા હોય ને એ મારે તને હકને આપવા જ પડે। लेकिन यह तो बहुत है। એટલે મોહન કે છે આ તો પણ બહુ વધારે પૈસા છે। इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। એટલે કે મારાથી વધારે ન લેવાય, અને જો હું વધારે લઉં તો મેં તમારું શોષણ કર્યું છે એવું લાગે મને। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 350 करने लगा। 500 માંથી 350 रुपया આપ્યા અને બાકીના એને લીધા અને બાકીના એને પાછા આપી દીધા। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, जहाँ जब भी ग्वालियर आएगा ना तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास ही है ना। એટલે કે કહે છે કે બાબુજી, મને એટલો પારકો ના ગણશો, તમે જ્યારે પણ ગ્વાલિયર આવો ને તો મને फ़ोन કરીને બોલાવી લેજો, મારો નંબર તમારી પાસે છે। लेकिन मेरी शर्त है। वह क्या बाबूजी? 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। એટલે પેલા હોય છે ને કહે છે કે સારું, અમે આવશું ને તો તને फ़ोन કરીને બોલાવશું, પણ અમારી એક શરત છે, તારે આ 500 रुपया चुपचाप તારી પાસે રાખવા પડશે। उसके 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। એમાંથી એને 300 रुपया એની પાસે રાખ્યા। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी। ने કહે છે કે बाबूजी, તમે આ કેવી શરત રાખી મારી પાસે। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है। થોડીક વાર રહીને કહે છે કે બાબુજી, તમારો જે નંબર હતો એ મારા फ़ोन નંબરમાં આવી ગયો છે। कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा कि हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। મોહન કહે છે કે ક્યારેક ક્યારેક હું તમને फ़ोन કરીશ, हाँ करजे, મને સારું લાગશે ભાઈ। लेकिन आपका तो नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्य केतु, मेरी पत्नी है कामना। તો કહે છે કે મારું નામ સત્ય કેતુ છે અને મારી પત્નીનું નામ શું છે? કામના છે। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे
तब वह आँखों में न जाने कितना अपना अपन लिए हमें निहारता रहा। એટલે કહે છે કે એ લોકો સ્ટેશન ઉપર જવા જ્યારે જાય છે ત્યારે જે મોહન મૂકવા જાય છે એમને ત્યારે એવું લાગે કે જાણે આમ કોઈ પોતાનાનું માણસ હોય અને એનાથી એ પોતે કેટલા દૂર જતા હોય એવું પોતાનું લાગતું હતું એમને। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખતે એવું બને કે આપણે કોઈ અજાણી જગ્યાએ જઈએ ને તો ત્યાં બી કોઈક સારા માણસો હોય અને સારા માણસો મળે ને ત્યાં ઘણી વખત આપણને અજાણ્યા હોય એવું લાગે नहीं, अपनी जोड़े व्यवहार क्यों करता है, सारो करता है। तो चलो उसके बाद क्या करेंगे, शब्दार्थ और टिप्पणी। शब्दार्थ लिखना है ना, लिखोगे और क्या करोगे, तैयार भी करोगे। आज मैं आपको स्वाध्याय के जो प्रश्न है आपको आज अपनी तरह से कर लेना है, क्योंकि आज मैं वो आपको नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे 12वां आपका पाठ है रानी, वो अब मुझे करना बाकी है। तो आप विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो एक बिल्कुल बड़े नहीं है, एक एक वाक्य में ही। पहला प्रश्न है कि लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा, तो लेखक को डॉक्टर की दवा लेने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। देखो ये पेज नंबर डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। देखो यहाँ पे ही है पेज नंबर 44 पर। तो आप ऐसे स्वाध्याय में से आप हर बार मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न बता देती हूँ, पर इस बार आपको क्या करना है, स्वाध्याय के प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ के लिख देने हैं। लिख दोगे ना, इतना काम करोगे ना इस बार। तो अब मैं आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 और चौथा भी है कि निम्नलिखित विधान किसने किससे कहा है, वो लिखना। क्यों नहीं लिखना, खाली किसने किससे कहा है, बस इतना ही लिखना है आपको। तो इस वो लिख देना। और क्या करोगे, उसके बाद में जो मुहावरे है वो आपको लिखना है। क्या है मुहावरे, पाला पड़ना, संबंध में जुड़ जाना, असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ते हैं ना कभी हम, दामन थाम लेना, तो आश्रय लेना। उसके बाद में क्या आएगा, विरोधार्थी शब्द। तो विरोधार्थी शब्द में वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, शैतान, प्रीति, नफरत, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण, ये आपको स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख देना है। उसके बाद देखो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, वो 2 सेम की एक ही पाठ्य पुस्तक है हिंदी की। विद्यार्थी मित्रों, आपके कुल 24 है पाठ अनुक्रमणिका में, मालूम है ना आपका, 2 है तक। तो हम पहले सेम तक कितना कर रखेंगे, 12 पाठ तक रखेंगे। सही बात है। मैं एग्ज़ाम जो आपकी होगी 9th कक्षा के आपको बच्चों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 50, यानी कि 50 का पेपर आएगा हिंदी का। ओके, तो आपको वो 50 मार्क्स का पेपर है। मैं आपको ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको 1 से 12 तक का ही पूछूंगी। 10वां निकल गया है भारत गौरव, वो नहीं पूछने वाली। 1 से 9, 11, 12 इतना तक मैं आपको परीक्षा में पूछने वाली हूँ। मैं आज जो आपका पाठ है रानी, वो तो रानी पाठ है, उसमें एक घोड़ा होता है, रानी नाम एक घोड़ी होती है, उसके 2 साथी होते हैं, निक्की और रोजी। तो उसके वो बच्चों होते हैं, जो उसके 2 साथी है उन लोगों को जो रानी है उसके प्रति बहुत लगाव हो जाता है। तो उसके बारे में हम निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेव जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो इस घोड़ी के बारे में और ये 2 साथी होते हैं उसके बारे में ये रानी पाठ है, उसके अंदर हमको बताया गया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका आएगा तब आपको रानी पाठ क्या करना है, हमको समझना है। सही बात है। रानी पाठ समझेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ग्रामर में जो शुद्ध है वो भी हमको वो लेना है। तो आज हम रानी जो पाठ है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको
मैं आज थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि रानी पाठ में क्या है। तो रानी जो पाठ है उसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। वो बहुत अच्छा पाठ है। आप जब पढ़ोगे तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट होगा, मज़ा आएगा कि जो रानी होती है उसके प्रति उसके जो दोस्त होते हैं वो कैसे उसके साथ उसको उस एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। એટલે કે છે કે જે રાજા રજવાડા હોય ને એ લોકોને શું હોય, ઘોડાઓનો તબેલો હોય, કોઈ ઘોડા બાંધતા હોય, કોઈ ઘોડે સવારી કરતા હોય, તે લોકોને એ લોકો માટે જે ઇન્દોર છે, ઇન્દોર ગામમાં એમાં શું છે કે શાનદાર ઘોડા માટેનું એક, તમને ખબર છે ઘોડાની રેસ થતી હોય, પછી ઘોડા લે વેચનું કામ થતું હોય, એ બધું થતું હોય છે, બરાબર। તો કહે છે કે એના માટે उसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों यानी कि उसके पर घूमते देखते थे। પહેલાંના સમયમાં જે અંગ્રેજો હતા ને એમના જે બાળકો હોય એ ટટ્ટુ એટલે કે પેલા સફેદ ગધેડા એટલે કે એના ઉપર ફરતા આપણને જોવા મળતા હતા, ટટ્ટુ જે નાના હોય। तो કહે છે કે राजा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। પહેલાંના સમયમાં જે રામા કી કહાનીઓ મેં તો એટલે કહે છે કે પહેલાં જે આપણે બધી વાર્તાઓ સાંભળતા ને એમાં